Welcome back, everyone. Today, we will be discussing the next topic from inflammation, which is leukocyte extravasation. So, basically, extravasation predominantly occurs at post capillary venules. The four steps of extravasation of leukocyte is margination and rolling, tight binding, diapedesis, and migration. In margination and rolling, it occurs with the help of vasculature molecules like E-selectin, P-selectin, glycam 1, and CD34. The E-selectin binds silyl Lewis. The P-selectin also binds the silyl Lewis, while the glycam-1 CD34 binds the L-selectin. Silyl Lewis is a leukocyte molecule which is decreased in a condition in which the leukocyte adhesion is defective. This condition is known as leukocyte adhesion deficiency type 2. The E-selectin is upregulated by TNF and interleukin 1. The P-selectin is translocated to the endothelial surface via exocytosis from the weevil pallid bodies. Tight binding, also known as adhesion, the vasculature molecules that help in tight binding are ICAM1, which is CD54, and VCAM1, which is CD106. The ICAM1 binds to the leukocyte molecule CD11 or 18 integrins, which is also the LF1 or MAC1, while the VCAM1 CD106 binds with the leukocyte molecule VLA4 integrin. The CD18 integrin subunit is decreased, which causes the defective leukocyte adhesion, and this condition is known as leukocyte adhesion deficiency type 1. Third step is the diapedesis, also known as transmigration. The vasculature molecules in this are the PCAM1 CD31, and at the same time the leukocyte molecules are also PCAM1 CD31. A mnemonic to learn this is diapedesis has PE in it, PCAM1 also has PE in it. So from the PE in diapedesis, we can learn the vasculature molecule PCAM1 CD31 as well as the leukocyte molecule PCAM1 CD31. The WBC travels between the endothelial cells and exits the blood vessels. The fourth step is migration. In this, the WBC travels through the interstitium to the site of injury or infection, and they are guided by the chemotactic signals. Some chemotactic factors that help in chemotaxis or migration is C5a, IL-8, interleukin 8, LTB4, which is leukotrienes B4, 5-HETE, kallikrein, platelet activating factors, and formyl methionine peptides. Whereas there are various leukocyte molecules that do migration or chemotaxis. This is a diagram that shows the leukocyte extravasation step by step. First, there will be margination and rolling. Here we can see that the leukocyte molecule is attached to the E-selectin and it will roll and migrate to the next further E-selectin molecules. This molecule is the silyl Lewis and the binding vascular molecule is E-selectin or P-selectin. The next step comes when the leukocyte molecule will bind to the vascular molecule, which is ICAM1. Here, in the second step, the leukocyte molecule will be LFA1, and this binding is known as tight binding, also known as adhesion. Then there will be the third step, in which the leukocyte molecule will bind to the PCAM1. And when it binds to the PCAM1, it helps it to do the diapedesis or transmigration through the endothelial cells, and it exits the blood vessel. The fourth step is migration. Here, the leukocyte, which can be various leukocytes, travel to the site of injury, and it is done with the help of various chemotactic factors. So basically, leukocyte extravasation में क्या होता है?
कि ये एक्स्ट्रावेसेशन होता है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स से मोस्टली। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, मार्जिनेशन एंड रोलिंग, टाइट बाइंडिंग या फिर एडहेशन, डायपेटिसिस या फिर ट्रांसमाइग्रेशन एंड माइग्रेशन। मार्जिनेशन एंड रोलिंग में वैस्कुलेचर मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन और ग्लाइकैम 1 या फिर CD34। ये मॉलिक्यूल्स अपने अपने ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं और उनको मार्जिनेशन और रोलिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ई सेलेक्टिन बाइंड करता है साइला ल्यूइस से, पी सेलेक्टिन बाइंड करता है साइला ल्यूइस से, पर ग्लाइकैम 1 और CD34 एल सेलेक्टिन से बाइंड करता है। जो ई सेलेक्टिन होता है वो अपरेगुलेट होता है TNF से और इंटरल्यूकिन 1 से। पी सेलेक्टिन एंडोथीलियल के सरफेस पे आता है ट्रांसलोकेट होकर एक्सोसाइटोसिस से वाया द वीबल पैलेट बॉडीज। और जो थर्ड वैस्कुलेचर मॉलिक्यूल है ग्लाइकैम 1 और CD34, ये भी बाइंड करते हैं एल सेलेक्टिन से, जो थर्ड ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल है। जो साइला ल्यूइस होता है ये ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल है और इसकी कभी कभी डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर ये मॉलिक्यूल डेफिशिएंट है, इसकी वजह से मार्जिनेशन और रोलिंग डिफेक्टिव होगा और इस कंडीशन का नाम है ल्यूकोसाइड एडहेशन डेफिशिएंसी टाइप 2। सेकेंड स्टेप है टाइट बाइंडिंग या फिर एडहेशन। इसमें वैस्कुलेचर या फिर स्ट्रोमा मॉलिक्यूल्स होते हैं आईकैम 1 या CD54, वीकैम 1 या फिर CD106। आईकैम 1 CD54 अपने रिस्पेक्टिव ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, जो कि है CD11 और 18 इंटीग्रिन्स, और इसको LFA1 और MAC1 भी बोल सकते हैं। और वीकैम 1 या CD106 जो है वो VLA4 इंटीग्रिन से बाइंड करता है। अगर CD18 इंटीग्रिन्स सब यूनिट का डेफिशिएंसी होता है तो इसकी वजह से टाइट बाइंडिंग एडिशन डिफेक्टिव होगा और इस कंडीशन का नाम है ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी टाइप 1। डायपेटिसिस है थर्ड स्टेप। इसको हम ट्रांसमाइग्रेशन भी बोलते हैं बिकॉज इसमें जो WBCs होते हैं वो एंडोथीलियल सेल्स के थ्रू या उनके बीच में से ट्रैवल करके जाते हैं और वो ब्लड वेसल्स को एग्जिट करते हैं। इसमें वैस्कुलेचर या स्ट्रोमा मॉलिक्यूल का नाम है PCAM 1 और CD31 और सेम ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल का भी नाम है PCAM 1 CD31। डायपेटिसिस में PE आता है, सो वी कैन लर्न कि जो इसमें वैस्कुलेचर और ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल होगा वो होगा PECAM 1 PECAM 1 और CD31। फोर्थ स्टेप है माइग्रेशन। इसमें WBC जो होता है वो इंटरस्टिशियम के थ्रू ट्रैवल करके साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन तक जाता है। ये गाइड होता है कीमोटैक्टिक सिग्नल्स से। इसमें काफ़ी कीमोटैक्टिक सिग्नल्स या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे C5a, इंटरल्यूकिन 8, ल्यूकोट्राइन B4, LTB4, 5-HETE, कैलिक्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड फॉर्माइल मिथ्योनाइल पेप्टाइड्स। और जो ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरियस हो सकते हैं। इस डायग्राम में डिटेल में एक्सप्लेन है कि वो 4 स्टेप्स ल्यूकोसाइड एक्सट्रावेसेशन के कौन से होते हैं। फर्स्ट है मार्जिनेशन एंड रोलिंग, देन टाइट बाइंडिंग, डायपेटिसिस एंड मार्जिनेशन। सो फर्स्ट स्टेप में मार्जिनेशन और रोलिंग हो रहा है। ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल अपने वैस्कुलेचर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है। इधर ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल का नाम है साइला ल्यूइस और जो वैस्कुलेचर मॉलिक्यूल है वो है ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन। नेक्स्ट आते हैं हम टाइट बाइंडिंग पे। जो टाइट बाइंडिंग होता है इसमें जो ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल है LFA1 वो बाइंड करेगा वैस्कुलेचर मॉलिक्यूल से, ये है ICAM 1। इसके बाद आता है डायपेटिसिस। जो ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल है वो फर्दर PCAM 1 से बाइंड होता है। ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल भी PCAM 1 है और वैस्कुलेचर मॉलिक्यूल भी PCAM 1 है। जब ये बाइंड होता है तो PCAM के थ्रू जो ल्यूकोसाइड मॉलिक्यूल्स है वेसल्स को एग्जिट करते हैं एंडोथीलियल सेल्स के बीच में से, और इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन या फिर डायपेटिसिस। देन फोर्थ स्टेप है माइग्रेशन। इसमें सिंपली जो ल्यूकोसाइट है, जो कि वेरियस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ल्यूकोसाइट के, वो कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स के हेल्प के साथ
कीमोटैक्सिस करते हैं, यानी जो साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन है वहाँ पर माइग्रेट करते हैं।